یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس مختلف ماحول میں گاڑی چلا رہے ہوں گے، جیسے رات، دھند، طوفان، بارش، اور متحدہ عرب امارات میں ڈرائیونگ کے دوران سڑک پر محفوظ رہنے کے لیے ان سے نمٹنے کے مؤثر طریقے۔ یہ کورس وضاحت کرے گا رات کو ڈرائیونگ میں کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دھند، طوفان، بارش اور سیلاب کی ڈرائیونگ پر کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں، اور قدرتی قوتیں دن کے مختلف اوقات میں ڈرائیونگ کو کس طرح متاثر کرتی ہیں اور وہ مختلف قسم کی گاڑیوں کو کس طرح متاثر کرتی ہیں۔ اس کورس ڈرائیونگ کا ماحول میں 5 موڈیولز شامل ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ نیچے کورس ڈرائیونگ کا ماحول کے موڈیولز درج ہیں۔ آپ کو ترتیب میں تمام موڈیولز کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر موڈیول کے اختتام پر ایک معلومات کا امتحان ہوگا۔ موضوع پہ جانے کے لیے متعلقہ موڈیول پر کلک کریں۔ نائٹ ڈرائیونگ۔ نائٹ ڈرائیونگ، رات کو محفوظ طریقے سے گاڑی چلانا۔ اس موڈیول میں آپ رات کو محفوظ ڈرائیونگ کے بارے میں سیکھیں گے۔ آئیے رات کو محفوظ طریقے سے گاڑی چلانے سے شروع کریں۔ رات میں گاڑی چلانا ڈرائیونگ کا ایک اور پہلو ہے جو دن کی ڈرائیونگ سے زیادہ مشکل ہے۔ اس کے لیے زیادہ توجہ اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کی ایک واضح وجہ دن کی روشنی کا نہ ہونا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈرائیور کا 90% رد عمل بصارت پر منحصر ہوتا ہے جو رات کے وقت انتہائی محدود ہوتا ہے۔ دن کے وقت ڈرائیور اپنے مرکزی اور پردی نقطہ نظر میں اشیاء کو دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں، یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے۔ تاہم رات کے وقت قدرتی روشنی کے منبع کی عدم دستیابی کی وجہ سے ڈرائیوروں کو محدود کر دیا جاتا ہے اور وہ اسٹریٹ لائٹس یا گاڑی کی ہیڈ لائٹس پر انحصار کرتے ہیں۔ کم مرئیت کی وجہ سے ہر سڑک استعمال کرنے والے کے لیے رات کے وقت مہلک اور معمولی دونوں حادثات کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم یہ خطرہ نئے یا نوجوان ڈرائیوروں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ ہماری آنکھیں رات کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ بصری نظام کیسے کام کرتا ہے اور رات کے وقت آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں۔ ہماری آنکھیں ہمیں روشنی کے حالات کی ناقابل یقین حد تک وسیع رینج میں دیکھنے میں مدد کرتی ہیں، جیسا کہ آنکھوں کے مختلف حصے مل کر کام کرتے ہیں۔ بینائی آنکھ کے 3 حصوں سے ممکن ہوتی ہے: پیوپل، راڈ اور کون، خلیات اور فوٹو پگمنٹس۔ آئیے آنکھ کی بینائی کے پہلے حصے پر بات کرتے ہیں: پیوپل۔ آنکھ کئی طریقوں سے کیمرے سے ملتی جلتی ہے۔ کیمرے کا اپرچر وہ حصہ ہے جو کنٹرول طریقے سے روشنی اندر جانے دینے کے لیے سکڑتا ہے یا پھیلتا ہے۔ پیوپل اسی طرح کا کام کرتا ہے، یہ روشنی میں چھوٹا ہو جاتا ہے تاکہ روشنی کی اضافی مقدار کو ریٹینا تک پہنچانے سے جسمانی طور پر روکا جا سکے، اور یہ اندھیرے میں کھل جاتا ہے۔ آئیے آنکھ کی بینائی کے دوسرے حصے پر بات کرتے ہیں۔ ہماری آنکھیں روشنی کو دیکھنے کے لیے 2 مختلف قسم کے سیل کا استعمال کرتی ہیں، وہ یہ ہیں: راڈ اور کون۔ راڈ سیل صرف سیاہ اور سفید دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ریزولوشن خراب ہے، لیکن بہت کم روشنی میں بھی حساس رہتے ہیں۔ اسے اسکوٹوپک ویژن کہا جاتا ہے۔ مخروطی خلیے ٹھیک تفصیلات اور رنگوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کے لیے انہیں تیز روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے فوٹوپک ویژن کہتے ہیں۔ میوسوبک ویژن اوسط یا درمیانی روشنی کے حالات میں ہوتا ہے اور مؤثر طریقے سے اسکوٹوپک اور فوٹوپک ویژن کو یکجا کرتا ہے۔
आंख की बिनाई का तीसरा हिस्सा फोटो पिगमेंट्स है। रॉड और कॉन दोनों में रोशनी के लिए हसास केमिकल होते हैं जिसे फोटो पिगमेंट कहते हैं। जब रोशनी के सामने आते हैं तो फोटो पिगमेंट एक कीमियाई अमल से गुजरते हैं जो रोशनी की तवानाई को बरकी सरगर्मी में बदल देता है, जिसकी तशरीह करना हमारा दिमाग जानता है। रोडोप्सिन रॉड्स के जरिए इस्तेमाल होने वाला फोटो पिगमेंट रात की बिनाई की कलीद है। मरैयत को मुतासिर करने वाला रंग। बुनियादी तौर पर इंसानी आंख खुद को मुख्तलिफ रोशनी के हालात के मुताबिक ढाल सकती है, क्योंकि ये तारीकी और रोशनी की मुख्तलिफ सतहों को एडजस्ट कर सकती है। बसरी मुवाफिकत की दो किस्में हैं, रोशनी की मुवाफिकत और तारीकी की मुवाफिकत। रोशनी की मुवाफिकत उस वक्त होती है जब हम अंधेरे से तेज रोशनी में मुंतकिल होते हैं। हमारी आंखों को अंधेरे से चमकती सूरज की रोशनी के मुताबिक ढालने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। तारीकी की मुवाफिकत इस वक्त होती है जब हम एक अच्छी रोशनी जगह से तारीक जगह में जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम एक रोशन धूप वाले दिन बाहर निकलने के फौरन बाद एक बहुत ही मुधिम रोशनी वाले कमरे में दाखिल होते हैं तो हम पहले अपने इर्द गिर्द को देखने के काबिल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम आहिस्ता आहिस्ता कमरे के मवाद से आश्ना होते हैं और उसके साथ मुताबिकत पैदा कर लेते हैं। आंख को तकरीबन 20 से 30 मिनट लगते हैं रोशन सूरज की रोशनी से मुकम्मल अंधेरे में मुकम्मल तौर पर ढालने में। हमारी आंखों के लिए अंधेरे को एडजस्ट करने के मुकाबले में तेज रोशनी को अपनाना आसान है। इस वजह से रात के वक्त गाड़ी चलाने वाले इन चीजों को नहीं देख पाते जिनका रंग गहरा होता है। इसलिए सड़क इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद, खास तौर पर साइकिल सवारों और मोटरसाइकिल सवारों को चाहिए कि वो चमकदार रंग के हेलमेट और फ्लोरेसेंट लिबास या पट्टियां पहने। वो खुद को ज्यादा नुमाया करने के लिए दिन की अच्छी रोशनी में भी हेडलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अवामिल जो रात में ड्राइविंग के खतरे में इजाफा करते हैं। मरैयत के साथ साथ बहुत सी दूसरी वजूहात रात के वक्त गाड़ी चलाने के खतरे को बढ़ाती हैं, जिनमें शामिल हैं सूरज गुरूब होने के बाद गहराई का इदराक, रंग की शनाख्त और मुहीत नजर कम हो जाना। रफ्तार और फासले का फैसला करने की कम सलाहियत। सड़क के कमजोर इस्तेमाल करने वाले जैसे पैदल चलने वाले, साइकिल सवार और मोटरसाइकिल सवार का अक्सर मोटर सवारों को वाज़े तौर पर नजर ना आना। दिन भर के काम के बाद सड़क पर ज्यादा थके हुए ड्राइवर। रद्द अमल देने के लिए कम वक्त और जगह मैसर रहना, क्योंकि गाड़ी की लाइट्स दरकार हद तक रोशनी नहीं देती और रात की ड्राइविंग का अक्सर तफरीही मकासद के लिए होने की वजह से खलफिशार में इजाफा होना। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अब आइए बिनाई के मसाइल और रफ्तार की हद की वजह से होने वाले सड़क हादसात की कुछ वीडियोस देखें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। आइए मजीद जानें कि रात के वक्त जिम्मेदारी से गाड़ी कैसे चलाई जाए। अंधेरे के बाद के खतरात को कम से कम करने के लिए ड्राइवर और सवार बहुत कुछ कर सकते हैं। मौसर इकदामात में शामिल हैं आंख की मुवाफिकत, रोशनी को होशियारी से इस्तेमाल करना, तेज रोशनियों से परहेज करना, फासला रखना, स्कैन करना और होशियार रहना। आइए अब रात के वक्त ड्राइवरों के लिए सबसे पहले मौसर इकदाम पर बात करते हैं। आंख मुवाफिकत। रात की ड्राइविंग का सबसे वाज़ेह खतरा मरैयत में कमी है। आप अंधेरे को अपनाने के अमल को तेज करने के लिए इक़दामात कर सकते हैं। तारीक जगह में जाने और किसी चीज से टकराने का खतरा मोल लेने से पहले हथेलियों से आंखों पर हल्का सा दबाव डालने से एडजस्टमेंट के अमल को तेज करने में मदद मिल सकती है। याद रखें,
ज्यादा से ज्यादा अंदरूनी या डैशबोर्ड लाइट्स आगे की बसारत को मुतासिर या कम कर सकती हैं। ड्राइविंग के दौरान अंदरूनी लाइट से गुरेज करें और बाहर की बेहतर मरयत के लिए डैशबोर्ड लाइट्स को मध्यम रखें। रात के वक्त ड्राइवरों के लिए दूसरा मौसर इकदाम है रोशनी को होशियारी से इस्तेमाल करना। गाड़ियों की लाइट्स ड्राइवरों और उनके आसपास वालों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। रात के वक्त आगे और पीछे की लाइट्स के बगैर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। ड्राइवरों को यह भी चेक करना चाहिए कि सफर शुरू करने से पहले गाड़ी की तमाम लाइट्स मुकम्मल काम कर रही हैं, साफ रखी गई हैं और उनका रुख सही समत में है। हेडलाइट्स को अक्सर ऑन रखने की आदत डालना अच्छा ख्याल है। अहम उसूल, आपको अपनी गाड़ी की लाइट्स गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब तक और दिन के वक्त भी जब अच्छा दिखाई ना दे रहा हो, मजीद बरआं खराब मौसम के दौरान दिन के वक्त से कतई नजर लाइट्स इस्तेमाल करने पर गौर करें। मिसाल के तौर पर तूफान स्याह बादलों को ला सकता है जो आसमान को रात की तरह तारीक कर देते हैं। ड्राइवर्स हाई बीम मोड पर हेडलाइट्स का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब बगैर लैंप पोस्टों की फ्री वेस पर हो और मंजर अच्छा वाज़ेह ना हो। रात के वक्त ड्राइवरों के लिए तीसरा मौसर इकदाम है चमकती रोशनी से इज्तनाब करें। तेज रोशनी को बराह रास्त देखने से आंखों को अंधेरे में एडजस्ट करने के लिए दरकार वक्त में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। इसलिए रात को गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर्स को चाहिए कि वो अपनी तरफ आने वाली गाड़ियों की ऊंची लाइट्स को बराह रास्त देखने से गुरेज करें। इसके बजाय उन्हें सड़क के दाएं जानिब देखना चाहिए और रास्ते पर रहने के लिए लेन के दाएं तरफ चलना चाहिए। अगर ड्राइवर की आंखें पीछे गाड़ी की लाइट से चुंधिया रही हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अंदरूनी आईने को दिन और रात या चकाचौंध कम करने वाली पोजीशन पर इस्तेमाल करें। नाइट पोजीशन पीछे गाड़ियों के हेडलैम्प की चमक को कम करती है। ड्राइवर दिन या रात के मोड को मुंतखब करने के लिए आईने के नीचे वाले किनारे पर टैब को पलट सकते हैं। जदीद गाड़ियों में रात के आईने को पीछे वाली गाड़ी की लाइट्स की चमक के इम्कान को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रात के वक्त ड्राइवरों के लिए चौथा मौसर इकदाम है पीछे ज्यादा फासला रखना। अंधेरे में गाड़ियों की रफ्तार और फासले का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अशिया उनके जाहिर होने से ज्यादा करीब हो सकती हैं या तवक्को से ज्यादा तेजी से सफर कर रही हो सकती हैं। मजीद ये कि ड्राइवरों को अपने आप को किसी भी गैर मुतवक्के चैलेंज के लिए तैयार रखना चाहिए, इसलिए उन्हें मंदरजा झैल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। एक महफूज फासला बरकरार रखें जो दिन के वक्त के मुकाबले में दुगना हो। ऐसी रफ्तार से गाड़ी चलाएं जिससे वो खतरात को पहचान सकें और इसके मुताबिक रद्द अमल जाहिर करें। रात के वक्त ड्राइवरों के लिए पांचवा मौसर इकदाम है स्कैन करें और होशियार रहें। मोटर सवार अपने इर्द गिर्द के हालात से बाखबर रहने के लिए शीशे को बाकायदगी से चेक करके चौकस रह सकते हैं। रात के वक्त किसी हादसे से बचने का बेहतरीन तरीका रोशनी और तहरीरी मतनो हरकत पर नजर रखना है। रात के वक्त सड़क इस्तेमाल करने वालों की गलतियों के लिए स्कैन करना ज्यादा जरूरी है। बेहतर स्कैन करने और चौकन्ना रहने का एक तरीका यह यकीनी बनाना है कि विंडशील्ड और आईने साफ हैं। मोटरसाइकिल सवारों को यह भी यकीनी बनाना होगा कि उनका हेलमेट का शीशा साफ और खराश से पाक हो। इसी तरह गंदे आईने गाड़ियों के पीछे से आने वाली रोशनियों को वसी फैला हुए अंदाज में मुनक्स करते हैं जो आंखों में चकाचौंध पैदा कर सकते हैं। इसलिए ड्राइवरों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आईने साफ हों और उन्हें ऐसी समत में एडजस्ट किया जाए जो उनके लिए देखने में आसानी पैदा करे। अहम पैगाम, हमेशा कवायद व ज़वाबित की पैरवी करें और सड़क को फाल तौर पर स्कैन करें ताकि सड़क इस्तेमाल करने वालों की गलतियों का अंदाजा लगाया जा सके। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें।
मॉड्यूल का खुलासा। यह हमें इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर लाता है। आइए दोबारा दोहराते हैं कि आपने क्या सीखा। ड्राइविंग का माहौल के इस मॉड्यूल में आपने सीखा हमारी आंखें रात की रोशनी पर कैसे रद्द अमल देती हैं, बसरी मुवाफिकत की इकसाम, वो अवामिल जो रात के वक्त गाड़ी चलाने का खतरा बढ़ाते हैं और खतरे से बचने के लिए कौन सी तजावीज पर अमल किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुबारक हो, आपने अपने इल्म का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। अगले मॉड्यूल पर जाने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। धुंध और तूफान। धुंध और तूफान। इस मॉड्यूल में आप धुंध और रेत के तूफानों में महफूज तरीके से ड्राइविंग के बारे में सीखेंगे। आइए पहले बात करें कि धुंध में महफूज तरीके से गाड़ी कैसे चलाई जाए। धुंध एक बादल की तरह है जो जमीन की सतह पर बनता है, जो हवा में मौलिक पानी की छोटी बूंदों से बनता है। आमतौर पर धुंध उस वक्त बनती है जब हवा और जमीन के दर्जे हरारत में फर्क होता है, यानी जब गर्म या नम हवा किसी ठंडी सतह से गुजरती है। ये टुकड़ों में घनी या हल्की हो सकती है। धुंध में गाड़ी चलाना। धुंध दोनों नए और तजुर्बेकार ड्राइवरों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मौसमी हालात में से एक हो सकता है। धुंध नुमाया तौर पर दिखाई देने को कम करने की सलाहियत रखती है, लिहाजा इसकी वजह से ड्राइवर सड़क पर तवज्जो खो सकते हैं। ये एक बड़े हादसे का बाइस बन सकता है, जहां बहुत सी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जिससे चोटें और हलाकतें होती हैं। धुंध में महफूज तरीके से ड्राइविंग के लिए तजावीज। आइए धुंध में महफूज तरीके से ड्राइविंग के लिए तजावीज सीखें। सफर से पहले मौसम की पेशन गोई चेक करें। धुंध की वार्निंग की सूरत में अपने सफर को उस वक्त तक मुअख्खर करें जब तक कि यह साफ ना हो जाए। ठंडे महीनों में धुंध मामूल की बात है। अगर आपको ड्राइविंग के दौरान धुंध का सामना करना पड़ता है तो आपको गाड़ी चलाने या महफूज तरीके से सवारी करने के लिए और करने और ना करने के बारे में जानने की जरूरत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या करना है। कम बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऊंचे बीम धुंध में नमी की बूंदों को मुनक्स करती हैं, जिससे आगे देखना मुश्किल हो जाता है। अगर गाड़ी फोग लाइट से लैस है तो उन्हें कम बीम के साथ इस्तेमाल करें। खिड़कियों को साफ रखें। नजर को बढ़ाने के लिए डीफ्रॉस्टर और वाइपर्स का इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल सवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने वाइजर को साफ रखें।
ایسی رفتار سے چلائیں جو حالات کے مطابق ہو. محفوظ فاصلہ بڑھائیں. سڑک پر رہنمائی کے لیے فٹ پاتھ کے نشانات کا استعمال کریں. درمیان کی لائن کے بجائے دائیں کنارے پر غور کریں. صبر رکھیں اور غیر ضروری لین تبدیل کرنے، اوورٹیک اور ٹریفک کو پار کرنے سے گریز کریں. انتباہ کرنے والے برقی نشانات پر نظر رکھیں اور ان پر عمل کریں. ٹریفک یا خطرات کو سننے کے لیے کھڑکیوں کو تھوڑا سا کھولیں اگر مرئیت کم ہو. اپنی پوری توجہ سڑک پر رکھنے کے لیے ریڈیو کی آواز کو نیچے کر کے یا سیل فون کو بند کر کے کسی بھی ممکنہ خلفشار کو کم کریں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا ہے. دوسروں کو دھند کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے خطرے والے اشاروں کو چالو نہ کریں. اسے صرف ہنگامی حالات میں استعمال کریں کیونکہ وہ دوسرے موٹر سائیکلوں، موٹر سواروں کو خبردار کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں کہ گاڑی مکمل طور پر روک دی گئی ہے یا آگے سڑک پر خطرہ ہے. سڑک کے لین والے حصے پر مت رکیں کیونکہ آپ تصادم کے سلسلے میں پہلا تعلق بنا سکتے ہیں. دھند صاف ہونے کے باوجود اچانک رفتار تیز نہ کریں کیونکہ دھند ٹکڑوں میں ہو سکتی ہے اور اچانک واپس آ سکتی ہے. آہستہ رفتار گاڑیوں کو غیر ضروری طور پر اوورٹیک نہ کریں. اگر دھند بہت زیادہ ہو تو ڈرائیونگ جاری نہ رکھیں. یاد رکھیں، اگر سفر جاری رکھنے کے لیے دھند بہت زیادہ ہے تو سڑک سے مکمل طور پر ہٹ جائیں اور اپنی گاڑی کو محفوظ پارکنگ ایریا میں رکھنے کی کوشش کریں. اپنی کم بیم کی ہیڈ لائٹس کو آن رکھنے کے علاوہ ہیزرڈ لائٹس کو آن کریں. آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں. رفتار اور مرئیت. آئیے دھند میں رفتار اور مرئیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. مطالعوں سے پتا چلا ہے کہ موٹر سوار اس رفتار سے گاڑی چلانے کا انتخاب کرتے ہیں جس پر وہ سڑک میں رکاوٹوں سے بچنے کے لیے روکنے کے قابل نہیں ہو پاتے. حتیٰ کہ اگر وہ نظر کی دوری کی حدود پر فوری طور پر رکاوٹ کی نشاندہی کریں اور اس پر رد عمل ظاہر کریں. اگر موٹر سوار مرئیت کی حد سے کہیں زیادہ تیزی سے گاڑی چلاتے ہیں تو متعدد گاڑیوں کے شدید حادثات پیش آ سکتے ہیں. دھند میں گاڑی چلانے والوں کو چاہیے کہ وہ خود گاڑی کی رفتار کم کریں. اگر سڑک پر ایک متغیر پیغام کا نشان ہے جو رفتار کی حد کو ظاہر کرتا ہے تو موٹر سواروں کو اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ موجودہ مرئیت کی بنیاد پر متحرک رفتار کی حد ہے. یاد رکھیں، اپنی رفتار کو ہمیشہ دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ اپنی سوچ سے زیادہ تیز سفر کر رہے ہوں. اگر ایسا ہے تو رفتار کو آہستہ آہستہ کم کریں. آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں. ریت کے طوفان میں گاڑی چلانا. ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریت کے طوفان میں ڈرائیونگ کے بارے میں اور اس کے اثرات کے بارے میں. ریت کا طوفان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہوا اتنی تیز ہو کہ ریت کی اوپری تہہ کو زمین سے اٹھا لے اور اسے ہر ممکن سمت میں دھکیل دے. یہ عام طور پر ریتیلے یا صحرائی علاقوں کے قریب ہوتا ہے. دھند کی طرح ریت کے طوفان میں گاڑی چلانا بھی سڑک پر دوسرا خطرناک عمل ہے. ریت کا طوفان تمام موٹر گاڑیوں کو متاثر کرتا ہے اور محفوظ ڈرائیونگ کو مشکل بنا دیتا ہے کیونکہ
हवा में या विंड स्क्रीन पर रेत की वजह से मंजर कम दिखाई देता है। हवा या क्रॉस दबाव की वजह से गाड़ी या मोटरसाइकिल कंट्रोल को मुतासिर करता है। सड़क पर रेत की वजह से टायर की गिरफ्त को कम करता है। सड़क पर रेत जमा होने की वजह से सड़क के निशानात छुप जाते हैं। इन मुश्किलात से हादसे का खतरा बढ़ जाता है। रेत के तूफान के दौरान गाड़ी चलाने से गुरेज करना बेहतर है। सड़क के पक्के हिस्से से मुकम्मल तौर पर हटने और हैंड ब्रेक लगाने के लिए महफूज जगह तलाश करें। तमाम लाइट्स समेत हैजर्ड लाइट्स को बंद कर दें ताकि पीछे से आने वाली दूसरी गाड़ियों को उलझन या परेशानी का सामना ना हो। यह मशवरा दिया जाता है कि सीट बेल्ट के साथ गाड़ी में रहें और तूफान के गुजरने का इंतजार करें। मोटरसाइकिल सवारों को इस पर इंतहाई गौर करना चाहिए क्योंकि इससे उनकी महफूज तरीके से सवारी करने की सलाहियत मुतासिर होती है। क्या करें? अगर आपको गाड़ी चलाते हुए रेत के तूफान का सामना करना पड़ता है तो इन हिफाजती असूलों और तजावीज पर अमल करें। दूसरों को दिखाने और देखने के लिए हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें। खिड़कियों को ऊपर रखें और वेंट्स को बंद रखें। दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत गिरफ्त रखें। ऐसी रफ्तार से चलाएं जो हालात के मुताबिक हो। अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द हिफाजती दायरे को बरकरार रखें। सब्र करें और गैर जरूरी लेन तब्दील करने, पास से गुजरने या ट्रैफिक को पार करने से गुरेज करें। बरकी इंतबाही अलामात को देखें और उनकी पाबंदी करें। अपनी पूरी तवज्जो सड़क पर रखने के लिए रेडियो की आवाज को कम करके या सेल फोन को बंद करके किसी भी मुमकिना खिलफिशार को कम करें। क्या ना करें? रेत के तूफान के दौरान क्या नहीं करने की फहरिस्त। रेत के तूफान में गाड़ी चलाते वक्त खतरे की लाइट्स का इस्तेमाल ना करें। तेज रफ्तारी ना करें, ना मुड़ें या अचानक ब्रेक लगाना ना करें। अगर नजारा अचानक महदूद हो जाए तो सड़क के दरमियान में गाड़ी या मोटरसाइकिल को ना रोकें। कोशिश करें एक तरफ जाने की। भारी गाड़ियों को ओवरटेक ना करें, खास तौर पर खुली सड़कों पर। फिसलन और रेत वाली सड़कों पर गाड़ी चलाने का तरीका समझने के लिए ड्राइवर दर्ज तजावीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइवरों को आगे की सड़क का अच्छी तरह से मुताला करना चाहिए और मौसम की सूरत हाल पर गौर करना चाहिए। उन्हें अपने शीशे की जांच पड़ताल करनी चाहिए और जब वो सड़क की सतह को बिगड़ते हुए देखते हैं तो आहिस्ता हो जाएं। नर्म किनारों से दूर रहें और रेत, बजरी या चिपकने वाली चीजों पर नजर रखें क्योंकि वो सतह को बहुत फिसलन ज़दा बना सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। हादसात में हलाकतों की रिपोर्ट। इस स्लाइड पर दी गई मालूमात में बताया गया है कि हादसे में होने वाली हलाकतों की इत्तला कैसे दी जाए। सड़क पर बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है, जैसे सलूक, रफ्तार, खलफिशार और बहुत सी दूसरी। ताहम एक चीज जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता है वो मौसम है। खराब मौसमी हालात में सड़कें ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं क्योंकि ये न सिर्फ सड़कों को मुतासिर करती हैं बल्कि ड्राइवर की गाड़ी चलाने की सलाहियतों और ट्रैफिक की रवानी को भी मुतासिर करती हैं। यहां तक कि सबसे ज्यादा तजर्बाकार और काबिल ड्राइवरों को हादसात से बचने के लिए खराब मौसमी हालात में इजाफी मोहतात रहना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक खराब मौसमी हालात सड़क हादसात में हलाकतों में इजाफे में बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं। ज्यादातर मंजर खराब दिखाई देना और खराब मौसम की हालत के दौरान हिफाजती कवायद पर अमल ना करना गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, ट्रकों, बसों और दीगर गाड़ियों के सिलसिलावार हादसे का बाइस बन सकता है जिसमें सब एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मुतादिद गाड़ियों के तसादुम खास तौर पर मोहलिक होते हैं क्योंकि बच जाने वालों के लिए टूटी फूटी गाड़ियों की वजह से बच निकलना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि अगर बच जाने वाले बाहर निकलने में कामयाब हो जाएं तो दूसरी गाड़ियां उनको टकरा कर जा सकती हैं।
एक से ज्यादा गाड़ियों के तसादुम में इनफिरादी गाड़ियां अक्सर तेज रफ्तारी से मुतादिद बार टकराती हैं, जिससे मुसाफिरों के जख्मी होने का खतरा बढ़ जाता है, जो शायद पहले असर से बच गए हों। इस दौरान गिरा हुआ ईंधन और तेल आग का सबब बन सकते हैं, जो जल्द ही तबाहशुदा गाड़ियों को अपनी लपेट में ले सकती है। इसके अलावा मुतादिद गाड़ियों के तसादुम के नतीजे में अक्सर सड़कें बंद हो जाती हैं, इसलिए फायर ब्रिगेड और इमदादी गाड़ियों के लिए जाए हादसा पर जल्दी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। धुंध और तूफान जैसे खराब मौसम का एक और नतीजा गाड़ियों के कंट्रोल का खो जाना है, जिसके नतीजे में अक्सर एक गाड़ी का हादसा होता है। इसमें पक्की सड़क से निकलकर जामिद अशिया जैसे खड़ी गाड़ियों, लैंप पोस्टों, गार्ड रेलों और दीगर चीजों से टकराने जैसे हादसा शामिल हो सकते हैं। खराब मौसमी हालात के दौरान गाड़ी चलाने वाले और सवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो सड़क के महफूज हिस्से पर जाएं और हालात बेहतर होने तक का इंतजार करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मॉड्यूल का खुलासा। यह हम इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर लाता है। आइए दोबारा दोहराते हैं कि आपने क्या सीखा। ड्राइविंग का माहौल के इस मॉड्यूल में आपने सीखा धुंध में गाड़ी चलाने की वजूहात और धुंध में महफूज गाड़ी चलाने के लिए तजावीज। रेत का तूफान तमाम मोटर गाड़ियों को कैसे मुतासिर करता है और हादसात में हलाकतों की रिपोर्ट। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाब देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा। मॉड्यूल का खुलासा। यह हम इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर लाता है। आइए दोबारा दोहराते हैं कि आपने क्या सीखा। ड्राइविंग का माहौल के इस मॉड्यूल में आपने सीखा धुंध में गाड़ी चलाने की वजूहात और धुंध में महफूज गाड़ी चलाने के लिए तजावीज। रेत का तूफान तमाम मोटर गाड़ियों को कैसे मुतासिर करता है और हादसात में हलाकतों की रिपोर्ट। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाब देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुबारक हो, आपने अपने इल्म का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। अगले मॉड्यूल पर जाने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। बारिश और सैलाब। बारिश और सैलाब। इस मॉड्यूल में आप सीखते हैं कि किस तरह गाड़ी को बारिश में महफूज तरीके से चलाया जाए और किस तरह सैलाब से निपटना चाहिए। आइए सबसे पहले बारिश में गाड़ी चलाने से शुरू करते हैं। हो सकता है कि बारिश में गाड़ी चलाना बहुत से ड्राइवरों के लिए एक अहम हिफाजती ख्याल ना हो, लेकिन मौसम की यह हालत हादसे के खतरे को नुमायां तौर पर बढ़ा सकती है। रिकॉर्ड से साबित हुआ है कि आम मौसमी हालात के मुकाबले में बारिश के दौरान हादसात का तनासुब बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग गीली सड़क पर अपनी ड्राइविंग की आदत को तब्दील नहीं करते हैं। बारिश में गाड़ी चलाना। आम खबरों के मुताबिक बारिश का एक वक्फा हर 2 मिनट में एक हादसे का बाइस बनता है। एक तवील खुश्क मुद्दत के बाद पहली बारिश सड़क की सतह को फिसलन ज़दा बना देती है,
क्योंकि पानी सड़क पर तेल और उस गंदगी के साथ मिल जाता है जो धोया नहीं गया था। जब तक कि मजीद बारिश तेल और गंदगी को धो ना दे, फिसलन हो सकती है। तेल और गीली गंदगी की ये तह सड़क की सतह पर फिसलन की तह बनाती है, जिससे ये नुमाया तौर पर खतरनाक हो जाता है। फिसलन वाली सड़क के अलावा बारिश ड्राइविंग के खतरात का सबब बनती है, जैसे कि रोयत, टायर ट्रैक्शन, एक्वाप्लानिंग और ब्रेक लगाने का फासला। बारिश में ड्राइविंग के खतरे की पहली मिसाल यह है। रोयत, बारिश गाड़ी की विंडशील्ड के जरिए देखने के लिए ड्राइवर की मरैयत को मुतासिर करती है। यह ड्राइवर या सवार के तसव्वुर या इदराक को भी कम करता है। इसकी वजह यह है कि बारिश का पानी एक लेंस की तरह काम करता है जो रोशनी को फैलाता है ताकि यह मुख्तलिफ समतों में मुनएक्स हो जाए। नतीजे के तौर पर मरैयत कम हो जाती है और सड़क के निशानात भी सड़क के सारिफीन के लिए तकरीबन छुप जाते हैं। लिहाजा बारिश में ड्राइविंग करते वक्त मरैयत को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मंदरजा झैल तजावीज पर गौर करें। बारिश शुरू होने से पहले पुराने या टूटे हुए वाइपर ब्लेड को तब्दील कर दें। विंडशील्ड वाइपर्स की मुख्तलिफ रफ्तारों का इस्तेमाल करें ताकि विंड स्क्रीन से टकराने वाले पानी की मिकदार को दूर करने में मदद मिले। हेडलाइट्स को कम बीम पर ऑन करें ताकि आपको सही दिखाई दे और दूसरे भी आपको देख सकें। गाड़ी आहिस्ता चलाएं। सामने की तरफ ब्रेक लाइट्स देखकर ज्यादा चौकस रहें। ट्रकों और बसों जैसी भारी गाड़ियों की पैरवी करने से गुरेज करें, क्योंकि उनके बड़े टायरों से पैदा होने वाला पानी का स्प्रे मरैयत को कम कर सकता है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। बारिश और सैलाब। टायर ट्रैक्शन। बारिश में ड्राइविंग के खतरे की दूसरी मिसाल यह है। टायर ट्रैक्शन, पानी सड़क को फिसलन ज़दा बना देता है, जिससे टायर ट्रैक्शन कम हो जाता है। टायर ट्रैक्शन को बेहतर बनाने के लिए मोटर सवारों को चाहिए इस बात को यकीनी बनाएं कि टायर अच्छी हालत में हैं और खस्ता नहीं हैं। सड़क पर जमा पानी के तालाबों से दूर रहें। जहां पानी कम हो, ऐसी लाइन में गाड़ी चलाकर अगर मुमकिन हो तो आगे वाली गाड़ी के टायरों के ट्रैक पर चलाएं, क्योंकि ये पानी को फैला देगा। ताहम बारिश के दौरान ज्यादा महफूज फासले पर गाड़ी चलाना यकीनी बनाएं। बारिश में ड्राइविंग के खतरे की यह तीसरी मिसाल है। एक्वाप्लानिंग। इसे हाइड्रोप्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो उस वक्त होता है जब गाड़ी के पहियों और सड़क के दरमियान पानी की एक परत बन जाती है। सड़क की सतह ट्रैक्शन के नुकसान का सबब बनती है, जो गाड़ी को ड्राइवर के कंट्रोल का रद्द-ए-अमल देने से रोक देती है। रबड़ के टायर के चलने वाले पैटर्न में ग्रूव्स टायर के नीचे से पानी को मुंतशिर करने के लिए डिजाइन किया गया है। गीले हालात में भी आला रगड़ फराहम करता है, लेकिन टायर के नीचे से पानी का यह फैलाव मुनासिब तरीके से सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब गाड़ी कम रफ्तार पर हो। ताहम जैसे जैसे रफ्तार में इजाफा होता है, टायर के सामने पानी का एक तिकोन बनता है। तेज रफ्तार पर टायर को कहीं ज्यादा पानी का सामना करना पड़ता है। पहिए के सामने पानी का दबाव टायर के आम किनारे के नीचे पानी की एक मिकदार को धकेलता है, जिसकी वजह से यह सड़क से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इस मकाम पर टायर सड़क से राबिता खो देता है और पानी की पतली चादर पर फिसलन करना या तैरना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में वो कंट्रोल खो देता है। इस तरह की हालत के दौरान ना तो स्टीयरिंग की हरकत और ना ही ब्रेकिंग फोर्सेस को सड़क पर मुंतकिल किया जा सकता है। अगर एक से ज्यादा टायर एक्वाप्लान करते हैं तो गाड़ी समती कंट्रोल खो सकती है और उस वक्त तक फिसलती है जब तक कि या तो किसी रुकावट से टकरा ना जाए या इस कदर सुस्त हो जाए कि एक या ज्यादा टायर दोबारा सड़क से राबिता कर लें और ट्रैक्शन दोबारा हासिल हो जाए। वो अवामिल जो एक्वाप्लानिंग के इम्कानात में इजाफा करते हैं वो है गाड़ी की रफ्तार, सड़क पर पानी की गहराई, टायर की लाइन और गहराई और टायर का दबाव। एक्वाप्लानिंग को रोकने में मदद करने के लिए मोटर सवारों को चाहिए सूरत हाल के मुताबिक रफ्तार को कम करें
और रफ्तार को 80 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ब्रेक पर जोर से मारने से गुरेज करें, क्योंकि इससे गाड़ी फिसल सकती है, जिससे ब्रेक कम मौसर हो जाती है। जहां तक मुमकिन हो दरमियानी लेन में रहने की कोशिश करें, क्योंकि पानी पहले बैरूनी लेन में जमा होता है। अगर जमीन नजर नहीं आती है तो चलते हुए पानी में कभी भी गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि पानी गाड़ी को सड़क से बाहर ले जा सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि टायर की लानें मुनासिब हैं और उनकी गहराई काफी है। गीले मौसम में कारकर्दगी की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए ये तजावीज की जाती हैं। गोल नालियों वाले टायर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पानी को तेजी से दूर करते हैं। टायर की लानें कम से कम 4 मिलीमीटर गहरी होनी चाहिए ताकि पानी दूर कर सकें। तमाम टायरों में हवा के दबाव को बरकरार रखें और गीले हालात में क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल ना करें। गाड़ी एक्वाप्लेन हो जाने पर दोबारा कंट्रोल कैसे हासिल करें? पहले गाड़ी चलाने वालों को खुद को पुरसुकून रखना चाहिए और फिर शीशे की जांच पड़ताल करें। खतरे की लाइट्स ऑन करें, स्टीयरिंग व्हील की गिरफ्त मजबूत रखें और ब्रेक लगाने या तेज रफ्तार करने से गुरेज करें। एक्सेलरेटर को छोड़कर रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता कम करें। एक बार जब यह एहसास हो कि गाड़ी कंट्रोल में है तो या तो आहिस्ता से ब्रेक लगाएं या आहिस्ता आहिस्ता तेज करें और शीशे की दोबारा जांच पड़ताल करें कि दूसरी गाड़ियां बहुत करीब आ रही हैं। याद रखें, एक्वाप्लेनिंग करते वक्त सबसे बेहतर यह है कि घबराएं नहीं और किसी भी अचानक हरकत से गुरेज करें। आमतौर पर गाड़ी ड्राइवर की तरफ से किसी कार्रवाई के बगैर वापस काबू में आ जाएगी। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। ब्रेक लगने का फासला। बारिश में ड्राइविंग के खतरे की चौथी मिसाल यह है, ब्रेक लगने का फासला। ब्रेक लगने का फासला 2 अवामिल पर बुनियाद है, सोचने का फासला और रोकने का फासला। बारिश के दौरान ये दोनों अवामिल मुतासिर होंगे। बारिश में बसारत कम होने से सोचने का फासला बढ़ जाता है। रोकने का फासला कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि टायर और सड़क के दरमियान कम रगड़ होती है। ये अवामिल ब्रेक लगने के फासले को काफी हद तक मुतासिर करते हैं। मिसाल के तौर पर खुश्क मौसमी हालात में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी के मुकम्मल रुकने से पहले ब्रेक लगने का फासला तकरीबन 33 मीटर होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक ही गाड़ी गीले मौसम की हालत में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रही है तो ब्रेक लगने का फासला तकरीबन 48 मीटर होगा। लिहाजा यह मशवरा दिया जाता है कि बारिश में गाड़ी आहिस्ता चलाएं। मंदरजा झैल फासले को दुगना करें। मिसाल के तौर पर हल्की गाड़ियों की सूरत में 2 सेकंड के दरकार हिफाजती फासले को 4 सेकंड तक बढ़ाना चाहिए। बारिश रुकने के बाद तेज ना करें, क्योंकि सड़क की गीली सतह अब भी ब्रेक लगने का फासला बढ़ा सकती है। याद रखने का नुक्ता, खराब मौसमी हालात के दौरान हमेशा महफूज सफर के लिए इजाफी वक्त दें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। सैलाब, सैलाब के पानी का अंदाजा लगाना। अब आइए सीखते हैं कि सैलाब से कैसे निपटा जाए।
سیلاب اس وقت آتا ہے جب پانی کے اخراج کے مقابلے میں پانی کا داخلہ زیادہ ہوتا ہے۔ سیلاب عام طور پر بھاری بارش کے بعد آتا ہے۔ سیلاب فطری طور پر خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ گاڑیوں یا ان کے مکینوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ موسلادھار بارش کی صورت میں وادیوں کے ساتھ ساتھ شہر کے کئی علاقوں میں بھی سیلاب آ سکتا ہے۔ محفوظ رہنے کے لیے سیلاب میں گاڑی چلانے سے گریز کرنا بہتر ہے، خاص طور پر 2 پہیوں والی گاڑیاں۔ تاہم اگر یہ ناگزیر ہو کہ سیلاب میں ڈرائیو کریں تو موٹر سواروں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نوکیلی چیزیں یا گہرا گڑھا جیسے راستے میں پوشیدہ خطرات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا سیلاب سے گاڑی گزرنے سے پہلے سیلابی پانی کی گہرائی کا اندازہ لگانا اور یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ایسا کرنا محفوظ ہے۔ یاد رکھیں، ہلکی موٹر گاڑیوں کے لیے اگر سیلاب کا پانی ٹائر کی اونچائی کے نصف سے اوپر ہے تو وہاں نہ چلائیں، کیونکہ پانی ایگزاسٹ پائپ میں داخل ہو سکتا ہے اور انجن کے رک جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ موڈیول کا خلاصہ۔ یہ ہمیں اس موڈیول کے اختتام پر لاتا ہے۔ آئیے دوبارہ دہراتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا۔ ڈرائیونگ کا ماحول کے اس موڈیول میں آپ نے سیکھا بارش ڈرائیونگ پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے اور بارش میں کیسے ڈرائیونگ کرنی چاہیے، ایکوا پلین کے وقت گاڑی قابو میں کرنے کی تجاویز، سیلاب کے پانی کی گہرائی کا تعین کرنا۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ اس موڈیول میں بیان کردہ مواد کی بنیاد پر آپ کو درج ذیل 4 سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت ہے۔ پاس کرنے کے لیے آپ کو 75% یا اس سے زیادہ سکور کرنے ہوں گے اور اس موڈیول کو مکمل کے طور پر نشان زد کرنا ہوگا۔ ٹیسٹ شروع کرنے کے لیے شروع کریں پر کلک کریں۔ مبارک ہو، آپ نے اپنے علم کا امتحان کامیابی سے پاس کر لیا ہے۔ اگلے موڈیول پر جانے کے لیے جاری رکھیں پر کلک کریں۔ دن کے مختلف اوقات۔ دن کے مختلف اوقات۔ دن کے مختلف اوقات۔ اس موڈیول میں آپ دن کے مختلف اوقات میں محفوظ طریقے سے گاڑی چلانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ دن کے مختلف اوقات میں گاڑی چلانا، جیسے تیز دھوپ میں یا مصروف ترین اوقات کے دوران مصروف علاقوں میں ڈرائیونگ زیادہ مشکل ہو سکتی ہے۔ سورج کی چمک،
सबसे पहले आइए समझते हैं कि सूरज की चमक क्या है। अच्छे धूप वाले दिन गाड़ी चलाना शानदार मनाजिर फराहम कर सकता है, लेकिन यह एक खतरा भी पैदा कर सकता है अगर ड्राइवर की नजर चमकती धूप से मुतासिर हो रही हो। तुलुए आफ्ताब के फौरन बाद और गुरूबे आफ्ताब से पहले सूरज ड्राइवर की आंखों में बराह रास्त चमक सकता है, जिससे बहुत से मोटर सवारों को चमक के साथ गाड़ी चलानी पड़ती है। ये चकाचौंध आगे की सड़क को देखना और मुमकिना खतरात की निशानदही करना मुश्किल बना सकती है, जिससे ड्राइवरों के लिए एक इजाफी खतरा पैदा हो जाता है। जब सूरज की चकाचौंध एक मसला है तो आहिस्ता और हिफाजती मोहतात रहें, खास तौर पर रिहायशी और स्कूल के इलाकों में ड्राइविंग करते वक्त। गाड़ी चलाने वालों को सूरज की रोशनी के दौरान महफूज तरीके से गाड़ी चलाने के लिए इन हिदायत पर अमल करना चाहिए। विंडशील्ड को अंदर और बाहर से साफ रखें। अगर मुमकिन हो तो पोलराइज्ड धूप के चश्मों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मखसूस चश्मे सूरज की चकाचौंध को कम करने में मदद कर सकते हैं। सन विजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह सूरज को रोकने में मदद कर सकता है। तस्वुर या खतरे के इदराक के लिए काफी वक्त देने के लिए ज्यादा महफूज फासला रखें। रहनुमाई के लिए लेन के निशानात का इस्तेमाल करें जब सड़क को देखना मुश्किल हो और इर्द गिर्द ट्रैफिक और मुमकिना खतरात से आगाह रहें। मसरूफ इलाकों में ड्राइविंग। आइए बात करते हैं कि मसरूफ इलाकों में गाड़ी कैसे चलाई जाए। मसरूफ इलाके में गाड़ी चलाना बहुत से ड्राइवरों, खास तौर पर नए ड्राइवरों के लिए एक चैलेंज भी हो सकता है। बार बार रुकना और रफ्तार तेज करना सड़क इस्तेमाल करने वालों में बेचैनी का बाइस बन सकता है। ये कुछ ड्राइवर्स को बगैर सिग्नल के अचानक और ज्यादा कसरत से लेन तब्दील करने का बाइस बन सकता है। मसरूफ इलाकों में एक और खतरा पैदल चलने वालों का है, जो इन पोशीदा जगहों में से सामने नमूदार हो सकते हैं जिनको दूसरी गाड़ियों ने छुपाया हुआ हो। लिहाजा जब भी मुमकिन हो मोटर सवारों को चाहिए ऐसे औकात में गाड़ी चलाने का मंसूबा बनाएं जब ट्रैफिक कम हो। ट्रैफिक अपडेट्स के लिए मकामी रेडियो स्टेशन सुनकर ऐसे रास्ते इस्तेमाल करें जो कम मसरूफ हों। अगला, ट्रैफिक जाम के बगैर वाली सड़क पर जाएं। ताहम अगर मोटर सवार ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो उन्हें चाहिए पुरसुकून रहें और दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों के साथ शाइस्ता रहें, चौकस रहें और इर्द गिर्द के हालात जानने के लिए हमेशा ब्लाइंड स्पॉट्स को चेक करें। पहले से अच्छी तरह से मंसूबाबंदी करें और मंजिल तक पहुंचने के लिए मुनासिब लेन में जाएं। अगर लेन आपस में मिल रही हैं तो जिप के उसूल का इस्तेमाल करें, जिससे मिलने वाली लेन में गाड़ियों को एक के बाद एक खुली लेन में दाखिल होने की इजाजत मिलेगी। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मॉड्यूल का खुलासा। यह हमें इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर लाता है। आइए दोबारा दोहराते हैं कि आपने क्या सीखा। ड्राइविंग का माहौल के इस मॉड्यूल में आपने सीखा दिन के मुख्तलिफ औकात में कैसे महफूज तरीके से गाड़ी चलाएं, सूरज की चकाचौंध और मसरूफ इलाकों में ड्राइविंग करते वक्त किन तजावीज पर अमल करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मॉड्यूल का खुलासा। यह हमें इस मॉड्यूल हर किस्म की गाड़ियों पर असरअंदाज होने वाली कुदरती कुव्वतें। हर किस्म की गाड़ियों पर असरअंदाज होने वाली कुदरती कुव्वतें। हर किस्म की गाड़ियों पर असरअंदाज होने वाली कुदरती कुव्वतें। इस मॉड्यूल में आप इस बारे में सीखेंगे कि ड्राइविंग के दौरान कुदरती कुव्वतें गाड़ियों पर किस तरह काम करती हैं। कुदरती कुव्वतें कायनात में हर जगह पाई जाती हैं। ये कुव्वतें हमेशा तमाम चीजों या अज्साम पर काम करती हैं, या तो ठहरी हुई या काबिले हरकत। हम इन कुव्वतों को नहीं देख सकते, लेकिन अक्सर हम देख सकते हैं कि वो क्या करती हैं। कुदरती कुव्वतें जो हर किस्म की गाड़ियों पर काम करती हैं। आइए देखते हैं कि ये कुव्वतें क्या हैं। कुव्वत एक धक्का देने या खींचने का नाम है जो किसी चीज के लिए सबब बन सकता है कि उसकी रफ्तार में इजाफा कर दें, उसकी रफ्तार को कम करें, उसकी समत को तब्दील करें और उसकी शक्ल तब्दील करें।
कुदरती कुव्वतें तमाम मोटर गाड़ियों पर काम करती हैं और उन पर गिरफ्त की खसूसियात को मुतासिर करती हैं। ये कुव्वतें दो किस्म की हैं, मुतवाज़िन कुव्वतें और गैर मुतवाज़िन कुव्वतें। आइए मुतवाज़िन कुव्वत के बारे में सीखते हैं। आमतौर पर अगर ड्राइविंग फोर्स हवाई मुजाहिमत और जमीनी रगड़ की कुव्वत के बराबर है तो वो गाड़ी जो पहले से हरकत में है वो एक मुस्तहकम रफ्तार से सीधी चलती रहेगी, जबकि दूसरी तरफ जो गाड़ी हरकत नहीं कर रही है वो ठहरी रहेगी। आइए गैर मुतवाज़िन कुव्वतों के बारे में जानें। अगर ड्राइविंग कुव्वत हवा की मुजाहिमत और जमीनी रगड़ की कुव्वतों से ज्यादा है, फिर ठहरी हुई गाड़ी हरकत करना शुरू कर देगी और एक गाड़ी जो पहले से चल रही है उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। इन कुव्वतों के कवानीन को जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि अगर गाड़ी चलाने वाले इसको तोड़ते हैं या इसका गलत अंदाजा लगाते हैं तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। गाड़ी की हरकत को कंट्रोल करने के लिए 3 बुनियादी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ये हैं: रफ्तार बढ़ाना, ब्रेक लगाना और स्टीयरिंग मोड़ना। इनमें से हर एक काम मुख्तलिफ कुव्वतों से मुतासिर होता है, जैसे कशिश सकल, वो कुव्वत जो गाड़ी को जमीन के मरकज की तरफ खींचती है। ड्राइविंग कुव्वत, वो कुव्वत जो गाड़ी के इंजन से उसे हरकत देने के लिए पैदा होती है। रगड़ की कुव्वत, गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान मुजाहिमत की कुव्वत। हवा की मुजाहिमत, वो मुजाहिमती कुव्वत जो गाड़ी के अगले हिस्से पर असरअंदाज होती है जब हवा के अंदर सफर करती है। हर की तवानाई, वो तवानाई जो गाड़ी में हरकत की वजह से होती है। मुमकिना तवानाई, गाड़ी अपनी पोजीशन की वजह से जो तवानाई रखती है। मोमेंटम, चलती गाड़ी की कुव्वत। सेंट्रीफ्यूगल कुव्वत, एक घुमाव के इर्द गिर्द गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी के बाहर की तरफ खींचे जाने का रुझान। इनर्शिया, गाड़ी की तब्दीली के खिलाफ मुजाहिमत करने का रुझान, बशमूल तमाम अशिया या उसमें मौजूद अफराद के। अगरचे बहुत सी दूसरी कुव्वतें हैं, इनको जानना, गाड़ी पर उनके असरात और गाड़ी को कंट्रोल करने के तरीके जानना जरूरी है ताकि ड्राइविंग के महफूज और बेहतर फैसले किए जा सकें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। कशिश सकल। दरअसल इस बात की वजाहत है कि ड्राइविंग के दौरान कशिश सकल कैसे काम करती है। ऊपर की तरफ गाड़ी चलाते वक्त कशिश सकल की कुव्वत गाड़ी के खिलाफ काम करेगी। मोटर सवार रफ्तार को बरकरार रखने के लिए तेज या कम गियर का इंतखाब कर सकते हैं। जब नीचे की तरफ जाते हैं तो कशिश सकल की कुव्वत गाड़ी को तेज तर करने का सबब बनेगी। गाड़ी चलाने वाले कम गियर का इंतखाब कर सकते हैं और जब जरूरत हो तो महफूज रफ्तार को बरकरार रखते हुए गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए आसानी से ब्रेक लगाएं। रगड़, यहां रगड़ की वजाहत है। रगड़ मदद करती है टायर को सड़क की सतह पर स्लाइडिंग करने से। यह टायर और सड़क की सतह के दरमियान ट्रैक्शन में इजाफा करती है। टायर और सड़क की सतह के दरमियान रगड़ और ट्रैक्शन को बरकरार रखने के लिए मोटर आहिस्ता होना चाहिए। हर की तवानाई, यह हर की तवानाई की तफसील है। गाड़ी की रफ्तार के साथ हर की तवानाई में इजाफा होता है। गाड़ी चलाने वाले सड़क की सूरत हाल के मुताबिक गाड़ी के ब्रेक सिस्टम को पहले से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हर की तवानाई को हिरारत की तवानाई में तब्दील करके गाड़ी को महफूज तरीके से रोक सकें। मुमकिना तवानाई। आइए मुमकिना तवानाई के बारे में जानते हैं। जब गाड़ी किसी पुल या पहाड़ी पर होती है तो इसमें मुमकिना तवानाई होती है। गाड़ी चलाने वाले इस तवानाई बरकरार रखने के लिए पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमेंटम। आइए मोमेंटम के बारे में सीखते हैं। जब गाड़ी आगे बढ़ रही होती है तो गाड़ी इसमें मौजूद हर चीज की मोमेंटम होती है। इस कुव्वत को खत्म करने के लिए मोटर सवारों को आराम से ब्रेक लगाना होगा और निचले गियर में शिफ्ट करना होगा। सेंट्रीफ्यूगल कुव्वत। अगला आइए देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल कुव्वत क्या है। मोड़ से मुड़ते वक्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी पर काम करती है। मोटर सवार मोड़ में गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को आहिस्ता करके सेंट्रीफ्यूगल कुव्वत के रुझान को कम कर सकते हैं। इनर्शिया। यहां इनर्शिया की वजाहत है।
जब अचानक ब्रेक लगाई जाती है तो इनर्शिया गाड़ी और उसके अंदर मौजूद हर चीज को आगे बढ़ने का सबब बनता है। गाड़ी चलाने वालों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और गाड़ी के अंदर मौजूद हर चीज को महफूज रखना चाहिए ताकि उसे मजबूत रखा जा सके और गाड़ी के साथ तरीके से रोका जा सके। गाड़ी पर काम करने वाली कुदरती कुव्वतें इस लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती हैं: गाड़ी का वजन, गाड़ी की ऊंचाई, गाड़ी की रफ्तार और गाड़ी की पोजीशन। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। हादसे में मुलव्विस कुव्वत। अब आप इस बारे में जानेंगे कि हादसे में कौन सी कुव्वतें शामिल हैं। एक तेज रफ्तार गाड़ी में हरकी तवानाई और रफ्तार की एक बड़ी मिकदार होती है। गाड़ी चलाने वाले आसानी से और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाकर इन कुव्वतों को कम कर सकते हैं। अगर कोई हादसा पेश आता है जिसकी वजह से गाड़ी अचानक रुक जाती है, मोमेंटम की ताकत एक ताकतवर असर पैदा कर सकती है और गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है और इसके मकीनों को चोट पहुंचा सकती है। लेकिन अगर गाड़ी किसी चीज से टकराने से पहले आहिस्ता हो जाए या गाड़ी को रुकने के मकाम पर आने के लिए काफी वक्त दस्तयाब हो तो मोमेंटम की कुव्वत खत्म हो जाएगी और उसका कम जोरदार असर पड़ेगा। इसके नतीजे में गाड़ी को कम नुकसान पहुंचेगा और इसमें सवार अफराद को कम चोटें आएंगी। नागुज़ीर हादसे के दौरान मोटर सवार अपने समत को ऐसी चीजों की तरफ मोड़ सकते हैं जिसकी वजह से गाड़ी ज्यादा फासले पर रुक जाएगी, जैसे दरख्तों के बजाय झाड़ियां। हादसे की रुकावट के बजाय रेत और किसी शख्स, किसी और गाड़ी या ठोस गैर मनकूल अशिया को मारने से गुरेज करें। याद रखें, गाड़ी की हिफाजती खसूसियात को हमेशा इस्तेमाल करें क्योंकि वो हादसे के दौरान तवानाई जज्ब करते हैं ताकि मुसाफिरों को महफूज रखा जा सके। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मॉड्यूल का खुलासा। यह हम इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर लाता है। आइए दोबारा दोहराते हैं कि आपने क्या सीखा। ड्राइविंग का माहौल के इस मॉड्यूल में आपने सीखा कुदरती कुव्वतें तमाम चीजों या इज्साम पर कैसे अमल करती हैं, कुदरती कुव्वतों की इकसाम और उनके नताइज, और गाड़ी चलाने वाले आसानी से और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाकर कुव्वतों को कैसे कम कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें।
मुबारक हो, आपने कामयाबी के साथ ड्राइविंग माहौल पर कोर्स मुकम्मल किया है। कोर्स से बाहर निकलने के लिए बाहर निकलने पर क्लिक करें।